Hello students, so good morning and welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the next MCQ, that is MCQ number 66 to 80. Right? In previous video lecture we completed first 65 MCQs of the same topic, indefinite integration. Okay, so let's begin, let's start the next example, next MCQ, that is MCQ number 66. Okay. So what is example MCQ number 66? He has given function f of x and g of x. F of x is this, sin inverse x divided by under root 1 minus x square, and g of x is equal to e to the power sin inverse x. He has given fx and gx, f of x and g of x, this f of x and g of x, and we have to find integration of f of x into g of x, f of x into g of x with respect to x. It's very clear, we have to substitute. This is substitution method. Sin inverse x is equal to t. Why we have to put sin inverse x is equal to t? Because इसका डिफरेंशिएशन है 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. सो हियर दिस इंटीग्रल आई बिकम्स टी ई रेस टू टी, टी ई रेस टू टी, and this 1 upon root 1 minus x square dx is dt. So this is a product of two different function, algebraic into exponential. So order is absolutely same, LIATE. So algebraic के बाद ही exponential आता है, LIATE. So algebraic के उसके बाद क्या है, exponential. So by parts, u into integration of v minus integration of derivative of u into integration of v with respect to t. So t e raised to t minus e raised to t plus c. यहाँ पर e raised to t कॉमन लेना है. e raised to t means e raised to sin inverse x in bracket t. t means what? Sin inverse x. Sin inverse x minus 1 plus c. So this is the answer of the first 66, that is what, A option. Okay, it's very simple MCQ. Okay, but यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, क्या पुट करना है और किस मेथड से सॉल्व करना है. सो मेथड कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन. उसके बाद क्या है, बाय पार्ट्स. सो MCQ नंबर 67 नाउ. सो लुक एट द MCQ नंबर 67. इट इज अ cosec cube x. इट्स अ सिंपल सिंगल फंक्शन, कोसेक क्यूब, एक ही फंक्शन है, उसको मेक इट डबल बाय कोसेक एक्स इंटू कोसेक क्यूब एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स. Now consider this is u and this is v, because u is a differentiable function and this is a integrable function. So in by parts method, u into v dx means what, u is a differentiable and v is what, integrable. Right? एक पहला फंक्शन डिफरेंशियल होना चाहिए और दूसरा फंक्शन इंटीग्रेबल, विच इज वेरी इजी टू इंटीग्रेट. राइट? सो कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स. देखो, सो फर्स्ट यू कोसेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स dx. So it is a minus cosec x into cot x, minus into minus plus. So it's a cosec x into cot square x dx. So this is minus cosec x into cot x minus a cot square x is, it is not integrable. So इसको हम और एक बार स्प्लिट करेंगे, दैट इज फंडामेंटल आइडेंटिटी, cosec square x minus 1 dx. So it is a minus cosec x into cot x minus cosec x into cosec square x, it is a cosec cube x. Cosec cube x means I, minus into minus plus cosec x into 1 cosec x, and cosec x in का इंटीग्रेशन log of tan x by 2
प्लस सी. सो माइनस आई इधर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस आई प्लस आई 2i मीन्स 1/2 राइट साइड में. सो इट इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बाय 2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ टैन एक्स बाय 2 प्लस सी. ये उसका आंसर. वैसे कोसेक एक्स के दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं. फर्स्ट इज लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और सेकंड क्या है लॉग ऑफ टैन एक्स बाय 2 प्लस सी. बट ऑप्शन में जो है वही हमें यूज़ करना है 1/2 लॉग टैन एक्स बाय 2 माइनस 1/2 कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. यहाँ पर ऑप्शन क्या बन रहा है अपना ए बन रहा है. इज क्लियर. इट्स वेरी सिंपल इंटीग्रेट. बट यहाँ पर एक ही फंक्शन है, इट इज़ नॉट इंटीग्रेबल. उसको डबल किया कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स. सो फर्स्ट की यू कंसिडर किया, सेकंड को भी कंसिडर किया. बट दोनों भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है. बट डोंट वरी, हम उसको उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जिस मेथड में u इज अ डिफरेंशिएबल एंड v मस्ट बी इंटीग्रेबल. सो इट इज अ u इंटू v, दैट इज बाय पार्ट्स मेथड. ओके, इज इट क्लियर. सो दिस इज द 66 and 67. I hope you understand the both MCQ. Okay, so let's begin with the 68 and 69. पहले 68 सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ देखो 68 क्या है. MCQ नंबर 68, इंटीग्रेशन cos raised to 4x dx. सो इट इज़ अ कम्प्लीटली टेक्स्ट बुक रिलेटेड क्वेश्चन cos raised to 4x. बट बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं cos square x होल स्क्वायर. cos square x मीन्स 1 प्लस cos 2x बाय 2 होल स्क्वायर. इसको मैंने cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एक्स किया, cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx. सो cos स्क्वायर एक्स मीन्स व्हाट 1 प्लस cos 2x बाय 2. सो 2 का स्क्वायर 4. सो इसको आउटसाइड लेंगे 1/4 इंटीग्रेशन a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर dx. Okay, so this is integrable, this also integrable, but this cos square 2x is not integrable. So we can convert into same again one multiple angle formula. Cos square 2x means 1 plus cos 4x by 2 dx. So after separate dividing you will get this 1 and this half is 3/2. 3/2, 1 plus half is 3/2 plus 2 cos 2x plus cos 4x by 2. अब every term difference integrable है. Each and every term is integrable now. So this 3/2 is 3/2x. अब इसको इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे 3/2x. cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2 प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाय 4. 4 इंटू 2 what 8 प्लस c. दिस 2 एंड दिस 2 कैंसल. सो इम्पॉर्टेंट हियर व्हाट, हमें उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है 3/8 ab k is 1/4 3x. सो 1/8 करेंगे k आंसर में कन्वर्ट करना है बस. सो क्या करना है, इट इज़ 1/8 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो 1/4 sin 2x राइट. एंड दिस इज के आउटसाइड है 2 लिया है ना कॉमन. 2 लेने के बाद 1/8 हो जाएगा. सो 2 कॉमन लेने के बाद ये 2x ही रहेगा और ये 2 वहाँ से कॉमन लेने के बाद sin 4x बाय 4 रहेगा. सो दिस इज द पोजिशन ऑफ k. सो k इज इक्वल टू 1/8. दिस इज द पोजिशन ऑफ a. a is 3 and this is the position of b. b is 2.
सो व्हाट इज आंसर? आंसर इज k इज 1/2, a इज 3, b इज 2. सो ऑप्शन क्या है? सी. ओके, व्हाट इट मीन्स? व्हाट वी हैव टू कन्वर्ट द आंसर इनटू ऑप्शंस. हमें आंसर को ऑप्शंस में कन्वर्ट करना है एंड दैट ऑप्शन इज व्हाट? सी. इज इट क्लियर? सो 68 का आंसर क्या है? सी है. ओके, सो नेक्स्ट इज 69. 69 में क्या है देखो, so 16 minus sin cube x into cos raised to 4x is sin cube x into cos raised to 4x. So 69 integration of sin cube x into cos raised to 4x. यहाँ से जो ऑड पावर है वहाँ से एक sin x स्प्लिट करेंगे. सो क्या करना है? cos raised to 4 को पहले लिखेंगे, इसमें से एक sin x स्प्लिट करेंगे, sin x dx. sin स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x करेंगे, sin स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x. सो हमें cos x ही पुट करना है t, बिकॉज देखो चारों भी ऑप्शन में cos x की वैल्यू है, cos x ही टर्म है. सो आवर सोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन इज एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस. ऑप्शन में सब टर्म cos x है, देखो सब टर्म cos x के. सो cos x ही t पुट करना है. दैट्स और यहाँ पर ऑड पावर है, उसको स्प्लिट किया, एक sin x स्प्लिट बच गया sin स्क्वायर x. सो इंस्टेड ऑफ दैट sin स्क्वायर x वी हैव टू राइट 1 माइनस cos स्क्वायर x. सो पुट cos x इज इक्वल टू t. cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. ये माइनस साइन राइट साइड को, टी रेस टू 4, टी स्क्वायर टी रेस टू 6 बन जाएगा, माइनस टी रेस टू 6 साइन एक्स डी एक्स इज माइनस डी टी. सो टी रेस टू 5/5 प्लस टी रेस टू 7/7 प्लस सी. ये आंसर. सो यहाँ पर क्या करना है? बस आपको टी की जगह पर आपको रिप्लेस करना है कॉस. सो पहले पॉजिटिव टर्म लेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, मीन्स ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन. देखो सी ऑप्शन देखो क्या है? टी रेस टू कॉस रेस टू 7/7 माइनस कॉस रेस टू 5/5x प्लस सी. सो 69 का आंसर क्या है? सी है. ओके, सो वेरी सिंपल, 69 इज सी. नाउ वी हैव टू सॉल्व द सेम 70. वेरी सिमिलर टू 69, दैट इज व्हाट, यहाँ पर साइन रेस टू 4x है और कॉस क्यूब x है. सेम एग्जाम्पल है, सिमिलर, सेम मीन्स सिमिलर है, सिर्फ कॉस की जगह पर साइन है और राइट साइड में ही हैज गिवन साइन की टर्म. मीन्स व्हाट इट इज द आंसर, दैट इज वी हैव टू पुट साइन x इज इक्वल टू t. सो ये साइन रेस टू 4x, कॉस x स्प्लिट करो वहाँ से, कॉस x dx, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर x करो और sin x इज इक्वल टू t पुट करो, दैट इज डेरिवेटिव cos x dx. सो dt इज अ dt, t रेस टू 4 माइनस t रेस टू 6, t रेस टू 5/5, t रेस टू 7/7 प्लस c. दिस इज आंसर ऑफ 70. ओके, सो 1/5 1/7. So m is what? 5 and n is what? 7. So 5 and 7. So option क्या है? A है. So it is 1/m sin raised to 5x 1/7 sin raised to 7x plus c. So this is m, this is n. So m is equal to 5, n is equal to 7. So option क्या है? ये option. I hope you understand the both MCQ 69 and 70. सिमिलर है, बट यहाँ पर क्या है? राइट साइड में अपने ऑप्शंस को रीड करो क्या है और क्या पुट करना, वहीं पर आपको हिंट मिलने वाली है, वही आपको डायरेक्शन देगा कि व्हाट इज द प्रोसेस टू इंटीग्रेट दिस MCQ. ओके, सो लेट्स बिगिन. नेक्स्ट इज व्हाट? 71. अब 71 करना है, 71 72. देखो 71 में क्या है?
71. This is MCQ number 71. Log x upon 1 plus log x whole square. बहुत ही सिंपल बट इम्पॉर्टेंट. Log x divided by 1 plus log x whole square. So this is also completely textbook related question. So हमें इसको पुट करना है log x is equal to t. बट डोंट डिफ्रेंशिएट log x बिकॉज log x का डेरिवेटिव वहाँ पर 1/x है, बट यहाँ पर 1/x की टर्म नहीं है. अगर log x इज इक्वल टू t है तो x इज इक्वल टू व्हाट, e रेस टू t. सो व्हाट इज dx, e रेस टू t dt. सो I becomes log x means t 1 plus t whole square, dx means e रेस टू t dt. जिस फंक्शन में e रेस टू t अगर कोई टर्म है तो एग्जाम्पल डेफिनेटली इस फॉर्म में होता है. सो ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स. इसका इंटीग्रेशन था ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वाट सी. सो हमने लॉग एक्स इज इक्वल टू टी पुट किया है, उसका डिफरेंशिएशन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू टी डी टी बन गया है. सो यहाँ पर ई रेस टू टी टर्म है, सिर्फ इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है. सो ये फॉर्म आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल है. ये सिर्फ टर्म होना चाहिए, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू टी, ई रेस टू थीटा. अगर वो टर्म है तो हम उसको वहाँ पर आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि ये एग्जाम्पल, ये एमसीक्यू उस फॉर्म का है. बट सिर्फ आपको एडजस्ट करना है, डिफाइन करना है एफ ऑफ एक्स क्या है और उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स कौन सी टर्म है. इज इट क्लियर? अगर वो आइडेंटिफाई हो गया तो एग्जाम्पल सिंपल बन जाएगा. ओके. सो ई रेस टू टी t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी होल स्क्वायर, उसको +1 करेंगे -1 करेंगे dt. सो आंसर देखो I इज इक्वल टू ई रेस टू टी, सेपरेट डिवाइड करो, t 1 प्लस टी कट हो जाएगा, 1 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी होल स्क्वायर. आफ्टर सेपरेट डिवाइडिंग you will get this term. So look at this is f of t, this is f dash of t. So what will be answer? This ये इसका डेरिवेटिव ये डेफिनेटली आएगा. So e raised to t into 1/1 plus t plus c. e raised to t means x, e raised to t means x, 1 plus t means 1 plus log x plus c. x upon 1 plus log x. What is the answer of that 71? B option. Got it? So very simple. ये टाइप का एग्जाम्पल ये आपको चेक करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए. ओके. सो बट एग्जाम्पल इज गिव डिफरेंट इन द फॉर्म, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ log x. सो इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट इनटू e रेज़ टू x. सो सब्स्टिट्यूट करो, बन जाएगा. ओके. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ 71. नाउ 72 भी वही टाइप का एग्जाम्पल है. देखो now 72. What is 72? x square plus 1 upon x plus 1 whole square. x square plus 1 divided by x plus 1 whole square e raised to x dx. अब देखो यहाँ पर e raised to x भी है, सिर्फ इसको f of x f dash of x में कन्वर्ट करना है. सुपर x square plus 1 है, x square plus 1 उसको -1 प्लस 2 करेंगे, -1 प्लस 2 इज +1. सो इस सिर्फ +1 को मैंने क्या किया, +2 -1. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की आइडेंटिटी है x -1 x + 1, x -1 x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1 होल स्क्वायर +2 डिवाइडेड बाय x + 1 होल स्क्वायर. सेपरेट डिवाइड किया, दिस वन फैक्टर कैंसल and this will be the answer. x -1 upon x + 1 plus 2 divided by x + 1 whole square. You check it, this is f of x and उसका डिफरेंशिएशन f dash of x बन जाएगा. इसका डिफरेंशिएशन ये डेफिनेटली है. सो आंसर इज e raised to x f of x
plus C. This is the solution of this MCQ. ओके, तो 72 का आंसर क्या है, चेक करो, सी ऑप्शन आता है, सी ऑप्शन, दिस इज 72. ओके, सो नाउ 73, ये 70 दैट 71, 72, 73, ये 74, ये सेम एग्जाम्पल 75, 76 absolutely depends on this property e raised to x f of x plus f dash of x. Okay, so one by one करेंगे. After completion of 72, solid 73. 73 देखो क्या है, e raised to x divided by x plus 2 in bracket 1 plus x plus 2 into log of x plus 2 whole divided by this is dx. इसको अंदर डिवाइड करेंगे, x प्लस 2 ये फैक्टर है, e रेस्ट टू x अंदर डिवाइड करो 1 अपॉन x प्लस 2. डिवाइड करने के बाद ये फैक्टर कट हो जाएगा, लॉग ऑफ, ये प्लस साइन एज इट इज, लॉग ऑफ x प्लस 2 dx. नाउ दिस इज f ऑफ x, this is f dash of x. So answer is e raised to x into log of x plus 2 plus c. Very simple. So check करो, उसका आंसर 73 का कितना है, b है. Got it? Both this one is a very simple line, single line solution. इसको तो क्या लिखना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको अंदर डिवाइड करो और इमेजिन करो, ऐसे ऐसी प्रोसेस बनने वाली, एक स्टेप इमेजिन करना है, you will get the answer. Okay, this is the 73. Okay, now we have to start the 74. 74. हर एक कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, हर एक पार्ट पे एमसीक्यू आ सकता है. जैसे ये बाय पार्ट्स मेथड की सेकंड टाइप है, e रेस्ट टू x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x. गॉट इट? सो नाउ देखो, नाउ वी हैव टू सॉल्व द 74 नाउ. ये 74, what is 74? I is equal to 1 plus x square divided by 1 plus x square e raised to tan inverse x. This is a very typical example again, textbook related. 1 plus tan inverse x is equal to t पुट करो, उसका डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt. The first we have to substitute, हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा पहले. अगर tan इनवर्स x t है तो x कितना है, tan t बन जाएगा. x कितना बन जाएगा, tan t. tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, सो x इज इक्वल टू tan t. ओके, x की जगह पर tan t, 1 प्लस tan t प्लस tan स्क्वायर t e रेस्ट टू t 1 upon ये 1 upon 1 plus x square dx. So instead of this we write directly dt. So I becomes e raised to t पहले, ये tan t बाद में, 1 plus tan square t means sec square t dt. tan t का डेरिवेटिव sec square t, so आंसर e raised to t tan t plus c. Very typical solution. e raised to t means x, no, e raised to t means e raised to tan inverse x, and tan t means x. ये आंसर. तो 74 का ऑप्शन है x इंटू tan इनवर्स x. so x इंटू tan इनवर्स x में ऑप्शन क्या है, b. ओके, सो दिस इज द 74. ये सब वेरी सिंपल एमसीक्यू है, और इससे भी और सिंपल एग्जांपल एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, हर एग्जांपल डिफिकल्ट टफ लेवल का आना जरूरी नहीं है, कुछ एग्जांपल बहुत सिंपल होते हैं. राइट, हर मीन्स मैंने बहुत बार बताया कि 50 में से 10-12 एमसीक्यू तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक दो स्टेप के होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. कुछ 4-5-6 एग्जाम्पल JEE मेन लेवल के हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल थ्योरेटिकल बेस के हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल जस्ट रीड एंड टिक एंड क्लिक इट ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल 3-4 मिनट को भी लग सकते हैं. ओके, सो
हर एमसीक्यू 90 सेकंड 60 टू 90 सेकंड में सॉल्व होना जरूरी नहीं है। कुछ एग्जाम्पल को 10 सेकंड लगेंगे, कुछ को 5 मिनट भी लग सकते हैं। ओके, सो इट डिपेंड करता है एमसीक्यू पे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट 75 क्या है? द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज e raised to x. एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ f of x is e raised to x, and that of g of x, integration of g of x is equal to cos x. Okay, anti-derivative of f of x is e raised to x, and that of g of x is cos x. So हमें फाइंड करना है, सो f of x का इंटीग्रेशन e raised to x है, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x इज आगे नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x इज f of x, वही सा e raised to x बन जाएगा। ठीक है, हम बाद में एंटी डेरिवेटिव मीन्स व्हाट? एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन। सो हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ f of x cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g of x e raised to x। सो बाय पार्ट से सॉल्व करें तो उससे बेटर रहेगा u इंटू v। सो f of x इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस, ये उसको रिवर्स करेंगे, ये cos x पहले लिखेंगे और f of x बाद में लिखेंगे, प्लस ये g of x एज इट इज, e raised to x एज इट इज। सो cos x इंटीग्रेशन ऑफ f of x, इंटीग्रेशन f of x e raised to x माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, f of x का इंटीग्रेशन e raised to x प्लस, अब इसका g of x, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x, e raised to x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ g of x, g dash of x, e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x dx। अगर इंटीग्रेबल है तो इसको हम पहले लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ही हैज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ g of x, e raised to x into g of x, that is better. So e raised to x इंटीग्रेशन ऑफ g of x is cos x माइनस e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, g of x का इंटीग्रेशन cos x dx। समथिंग इज रॉन्ग हेयर। देखो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट, हम क्वेश्चन पहले रीड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ f of x cos x, एंटी डेरिवेटिव ऑफ f of x, एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इज इक्वल टू e raised to x, and that of g of x is cos x, and g of x का इंटीग्रेशन कितना है? cos x। सो डेफिनेटली f of x कितना बन जाएगा? किसका इंटीग्रेशन e raised to x है? e raised to x का। g of x किसका इंटीग्रेशन cos x है? g of x is what? cos x इंटीग्रेशन किसका है? माइनस sin x का। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, sin x का माइनस cos x, माइनस sin x का cos x। अब इस मेथड से सॉल्व करते, देखो f of x cos x ये dx प्लस g of x e raised to x dx, f of x इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x माइनस sin x इंटीग्रेशन f dash of x, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस g of x
ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स माइनस जी डैश ऑफ एक्स, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इज ई रेस टू एक्स साइन एक्स minus what is f dash of x, e raised to x sin x dx. Okay, plus what is g of x, g of x is minus sin x e raised to x minus what is g dash of x, sin x minus cos x e raised to x. जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, जी डैश ऑफ एक्स कितना बन जाएगा कॉस एक्स, माइनस इंटू माइनस कॉस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, सो ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स, ऑप्शन सी बन रहा है यहाँ पर, ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स. ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ 75. एंटी डेरिवेटिव मीन्स क्या है, इंटीग्रेशन. व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव, इज हम प्रिमिटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, उसको इंटीग्रल भी कहते हैं. एफ ऑफ एक्स का एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ई रेस टू एक्स, सो एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल. सो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ई रेस टू एक्स एंड दैट ऑफ जी ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव कितना है कॉस एक्स. सो ये दो टर्म गिवन है और हमें फाइंड करना है, दिस इज द क्वेश्चन. ओके, सो हम इसको सॉल्व करेंगे 75. ओके, नाउ 76. सो 76 देखो क्या है, 76 एंड 77. $76 and $77. Okay, now after completion of 75, let's see the 76 to 80. So what is 76? So 76 में क्या है, 2 raised to x in bracket f dash of x plus f of x log 2 dx. So देखो सो यहाँ पर ये ई रेस टू एक्स है, ये log 2 जो इंटू log 2 है, डिवाइड करेंगे. देखो एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स 2 रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स, कुछ जरूरत नहीं, डायरेक्ट है इसको, इसका ये फॉर्म में ई रेस टू एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स. सो अगर इसको टू पुट करेंगे 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी, तो 2 रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटू 1 बाय लॉग 2 डी टी. ना 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी पुट करने की जरूरत नहीं, इसका डिफरेंशिएशन log 2 से डिवाइड करो, डिवाइड करना तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. सो 2 रेस टू एक्स एफ डैश ऑफ एक्स बाय log 2 प्लस एफ ऑफ एक्स log 2 इंटू डी एक्स. सो एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन log 2, सो 2 रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये उसका आंसर. ये theoretical है, completely based on the result, completely based on that property, so definitely you will get the answer, that is 76 का आंसर कितना है, B है. Now 77. अब 77 देखो 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. सो बेसिकली ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज भी कर सकते हैं इसको, बट हम इसको माइनस 3x स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करेंगे, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. सो कुछ न्यूमेरिकल हम एडजस्टमेंट से उस बहुत फास्ट बहुत स्पीडली सॉल्व कर सकते हैं.
इस -3x² को मैंने क्या किया, -x² -2x²। सो सेपरेट डिवाइड करने के बाद देखो बहुत सिंपल बन जाएगा, ये 1 - x² 1 - x² कट हो जाएगा, यहाँ पर 1/x रहेगा, सिर्फ 1/x -2x² माइनस साइन बाहर, प्लस साइन माइनस वाई नहीं रन दो, 2x डिवाइडेड बाय 1 - x, x कैंसिल। सो इसका इंटीग्रेशन log x और x का log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस से x से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करो, log m प्लस log n इज log m इंटू n, x माइनस एक्स क्यूब। सो ऑप्शन क्या है, बी। सो दिस इज द ऑप्शन बी। ओके, सो दिस इज 77 क्या है, बी। Now 78, 79 and 80. What is 78? 78 में क्या है, इंटीग्रेशन I is equal to what is example x² plus 1 divided by x² minus 4x plus 3. It's absolutely degree of numerator is equal to degree of denominator. When degree of numerator is equal to degree of denominator, that time we have to convert numerator in the form of denominator. So numerator को denominator के form में convert करना है. So denominator first write as it is in the numerator and check the 1/1 term. x² तो मैच हो रहा है, -4x नहीं है, यहाँ पर बैलेंस के लिए +4x करेंगे, +1 है, 3 - 2 करेंगे, 3 - 2 1, सेपरेट डिवाइड करेंगे, डेफिनेटली 1 रहेगा, माइनस 4x - 2 डिवाइडेड बाय 4x - 2 डिवाइडेड बाय, इसके फैक्टर्स लिखेंगे नीचे यहाँ पर x - 3 एंड x - 1 dx। ये बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एक एडजस्टमेंट करता हूँ, यहाँ पर ये 1 का इंटीग्रेशन x लिखेंगे, एडजस्टमेंट देखो क्या है, x - 3 x - 1 ए फैक्टर डेफिनेटली बनेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x - x 4x, 5 × 3 -15 -15 -15 पहले 1 करेंगे, 5x 1 यहाँ पर 3, 5 × 1 -5 -5 + 3 -5 + 3 + 2। अब इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे, x - 3 x - 1। सो बाय पार्शियल फ्रैक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आपको सिर्फ क्या करना है, फैक्टराइज करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। ये 4x - 2 को इस फैक्टर में कन्वर्ट किया, मीन्स व्हाट, पहले x - 3 लिखा, बाद में x - 1 लिखा, बट चेक किया वो बैलेंस नहीं हो रहा था, पहले x - 1 लिखा, बाद में x - 3 लिखा। 5x - x 4x, 5 × -1 -5 + 3 -5 + 3 इज -2। ओके, सेपरेट डिवाइड करने के बाद एक कट हो जाएगा, x -5 log of x - 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, एक कैंसल, log of x प्लस -1 प्लस, ये उसका आंसर। सो ये 78 का आंसर है, x -5 माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस साइन है, ए प्लस ये प्लस साइन है, राइट, ये मिस्टेक, +5 प्लस लॉग ऑफ, ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है, चेक करो। ओके, सो दिस इज द 78, वेरी सिंपल, बट यहाँ पर मैंने पहले तो मेथड कौन सी अप्लाई की, दैट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इट मींस व्हाट, वी हैव टू कन्वर्ट न्यूमरेटर इनटू फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद बाय पार्शियल फ्रैक्शन मैंने अप्लाई नहीं की, यहाँ पर क्या किया मैंने, फैक्टराइज किया और उसको एडजस्ट किया। सो एडजस्टमेंट इज द की फैक्टर ऑफ द इंटीग्रेशन, राइट। सो बहुत सारे एग्जाम्पल इंटीग्रेशन के एडजस्टमेंट से ही सॉल्व हो सकते हैं। ओके, लुक एट वन मोर एग्जाम्पल 79।
79 में भी हम वैसे कर सकते हैं, लेकिन वो करना आपको आना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टर्म बैलेंस होना जरूरी है, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। देखो 79 नाउ 79 में क्या है, 2x² + 3 डिवाइडेड बाय x² - 1 x² + 4. Actual this is the example of by partial fraction. We can replace x² is equal to t. दोनों तरफ x² है तो हम रिप्लेस करेंगे, नॉट सब्सटीट्यूट, रिप्लेस करेंगे x² is equal to t. दिस टर्म बिकम्स 2t + 3 डिवाइडेड बाय t - 1 t + 4. t - 1 t + 4 दैट इज द नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. ओके, बट यहाँ पर मैंने x² t पुट नहीं किया, रिप्लेस किया. रिप्लेसमेंट इज द इट इज जस्ट टेंटेटिव अरेंजमेंट. टेंटेटिव अरेंजमेंट है कुछ स्टेप के लिए. ओके, सो यहाँ पर 2x², इस 2x² को x² + x² करेंगे, +4 - 1 4 - 1 3 x² + x² 2x², और दोनों फैक्टर नीचे भी है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. अगर इसको हम रेगुलर प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे तो देखो 3 मिनट तो डेफिनेटली लगते हैं. So to avoid such lengthy calculation, so adjustment is the key factor of solution of integration. Is it clear? So वो adjustment आपको आना चाहिए. Separate divide करेंगे now. और वैसे ही MCQ होते हैं फाइनल में कि लेंथी दिखने में तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल, बाय लुक इट इज बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बट नो नीड टू अप्लाई दैट बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. यही तो ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में. एडजस्टमेंट तो डेफिनेटली पॉसिबल, बस आपको समझ में आना चाहिए. सेपरेट डिवाइड कट हो जाएगा. 1/x² - 1 dx प्लस 1/x² + 4 dx. 1/x² - a² 1/2a log of x - 1/x + 1 plus 1/2 tan inverse of x/2 plus c. So this is answer. Now 80 last MCQ. 80 में क्या है देखो, MCQ नंबर 80. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास एग्जाम्पल है. 1/x³ into 1 - x dx. So by look we can't define any method. यहाँ पर कुछ भी मेथड हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इस मेथड का एग्जाम्पल है, बट इसको 1 को -x³ + x³ करो, -x³ + x³ किया मैंने, और आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट डेफिनेटली आंसर. उसको सेपरेट डिवाइड करेंगे. सो 1 - x³ के फैक्टर a - a³ - b³, a - b a² + ab + b² डिवाइडेड बाय x³ 1 - x प्लस x³ डिवाइडेड बाय x³ into 1 - x dx. सिंपल. ये 1 - x, ये 1 - x कैंसिल, x³ कैंसिल, 1/x³ x⁻³ x/x³ x⁻², x² कैंसिल 1/x प्लस 1/1 - x. अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही सिंपल. x⁻n का फॉर्मूला x⁻n + 1/n + 1 x⁻n + 1/n + 1 प्लस log x. -x है तो माइनस इंटू लॉग ऑफ 1 - x, बिकॉज x का कोएफिशिएंट -1 है तो ये -n बन जाएगा प्लस c. अब बस सिंप्लीफाई करना, -1/2x² -1/x प्लस लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 - x प्लस c. ओके, सो दिस इज अ सोल्यूशन. जस्ट चेक इट, मेक इट करेक्ट ऑप्शन. सो विच वन द ऑप्शन, देखो log ऑफ x/1 - x -1/2x² -1/x होना जरूरी है. सो देखो ये सी ऑप्शन दिख रहा है मुझे, आप चेक करो. सी ऑप्शन में क्या है, log ऑफ x/1 - x
minus 1 by 2x square minus 1 by x plus c. So option is what? C. So this is the completion of 80 number MCQs. So I hope you got the clear idea about this MCQs. हर MCQ का पूरा की पूरा सॉल्यूशन लिखो, हर MCQ ट्राई करो सॉल्व करने के लिए. To get the PDF format of this worksheet, check my description of this video lecture. You will definitely get the PDF format of this worksheet. You can try it at home, you can try it on the notebook, and if any doubt regarding this worksheet, you can ask me on my WhatsApp number or on my just comment on this YouTube channel. इस वीडियो को YouTube चैनल इस वीडियो को आप कमेंट कर सकते हैं. I will give the definitely solution. Okay. So still if you are not subscribed this YouTube channel, kindly subscribe this YouTube channel. Logo is this. इसको subscribe करो and stay tuned on this YouTube channel to get the more videos of this worksheet of this topic in different integration. Okay. So today it is sufficient. So I hope you got the clear judgment, clear idea about this topic in different integration. Okay. So thank you very much.